probability, and some important definitions like independent events, conditional probability, multiplication theorem, addition theorem, Bayes theorem. If you know the basics of all these, you can easily understand the problem. Okay, and the concept of cards, playing cards जो रहते हैं वो ले लो आप, एक 50 रुपीज तक आ जाएगा शायद आपको. So I'll tell you some problems which are related to cards. So practically you can imagine easily. Okay. So now probability function. First definition is probability function. Now suppose P of x we are going to call it as. Okay. So let me write it. Let capital S be a finite sample space. Be a finite. Let capital S be a finite sample space. Sample space. A real valued function. A real valued function capital P from capital S into capital R is called probability function is called. सुन रहे ना आप? Yes, sir. is called probability function. ये बहुत इजी रहेगा आपको, इसमें ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंस नहीं रहता, ये पूरे 3 यूनिट में. ऑन एस if the following 3 axioms are satisfied. The following conditions, axioms भी बोल सकते हैं आप, satisfied या true. satisfied. इसमें पहली कंडीशन है नंबर 1, that is called axiom of positivity. What is that? मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे. Probability of any event must be greater than or equal to 0. This is the first condition. Okay. इसका मतलब क्या है? अगर आप सिंपल वर्ड में बोले तो कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, probability of any event should be greater than or equal to 0. For example, I will give you one example. If you are tossing a coin, what are the probabilities you will get? Either you will get head or you will get tails. Understand? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट. जीरो आ सकता है क्या? टॉसिंग ए कॉइन यू विल नॉट गेट एनी केस में जीरो नहीं आ सकता. नो. सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1. इट मीन्स व्हाट? इसको सिंपल वर्ड में बोले तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1. इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये बहुत जरूरी है. सम ऑफ ऑल probabilities is 1. Sum of all the probability is 1. Means same example, tossing a coin. What is the probability of getting head? 1 by 2. What is the probability of getting a tail? 1 by 2. What is the sum of these two? That should be 1. So
probability of any space S, sum of the probability is 1. इसका भी लिख देंगे यहाँ पर वर्ड्स में, probability is always positive, always positive. probability कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देखिए हाँ, probability is always positive. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज, उसको बोलते हैं यूनियन एक्सियोम. व्हाट डज यू मीन बाय दिस? इफ यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, या फिर आप ए और बी भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. These three properties should satisfy. Okay, like in example, if you want to go to in detail, look at that. Suppose here you have one function like that, and take one more function like that. Okay, this is what, this is capital S, this is R. ये फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलते हैं? इसके डोमेन में रियल वैल्यूज अगर है तो रियल नंबर से ये पूरा, ये सैंपल स्पेस एस है, एंड दिस इज a probability function we are defining, that is called P of x. Okay, P of x. If P of x satisfying these three conditions, then we say that this P of x is a probability function. उसमें तीन कंडीशंस क्या है? कोई भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होना मतलब वो फंक्शन पॉजिटिव होता, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1. अगर आप यहाँ पर कोई दो भी इवेंट ले, E1 और E2, E1 एंड E2, इफ इट इज बिलोंग्स टू S, देन इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो E1 प्लस E2 होता. दिस विल बी द एक्चुअल डेफिनेशन. एंड एक सिंपल डेफिनेशन अगर अपन देखें प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन है M/N. क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको आप, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ नहीं, टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स. ठीक है, ये रही बात आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन. अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है. नेक्स्ट पेज में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स? डू यू हैव एनी आइडिया? प्लेइंग कार्ड्स, नो जैसे सर। कभी घर में खेले आप कार्ड्स? नहीं। डोंट डोंट से दैट इट इज जुआ, वो नाम है, वो वल्गर लोगों का नाम रखे हैं वैसा, वो प्लेइंग कार्ड्स है. उसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए एक बार, अगर आप कार्ड्स आपके पास अगर है तो और प्रैक्टिकली भी समझ में आती है ये चीज. देखिए टोटली वी हैव 52 कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स थे, and that 52 cards will be classified into two different two different categories. Out of them, 26 of them are red, 26 of them are black. The 26 of them are red and 26 of them are black. Again, this 26 will be classified into four categories: one, two, three, four. थोड़े के फिगर्स मेरे को मालूम है, थोड़े के फिगर अब मैं जरा भूल गया हूँ. एक रहता है डायमंड्स, दूसरे का नाम रहता है स्पेड्स, तीसरे का नाम रहता
डायमंड, स्पेड, और क्या रहता है उसमें, क्या कि मेरे को नाम याद नहीं है। तो इसमें फर्स्ट कार्ड का नाम एस, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, किंग एंड क्वीन। टोटल कितने हुए देखो, 1 2 3 4, 13 हुए। ये एस को जो है ना, अब एक्का भी बोलते हैं। 2 3 ये कार्ड्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए कितने, 13 हो गए। ऐसे ही इसमें भी 13, 13 फोर जा 52, राइट। और ये जो ना पिक्चर कार्ड रहते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, ये एज भी क्या है, पिक्चर कार्ड रहते हैं। एक कार्ड पे सेकंड 2 लिखा हुआ रहता है, 3 4। आप कार्ड्स ले लेके एक बार देख लीजिए आप। ये कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है, अपने पास बहुत क्वेश्चंस करना है कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कार्ड्स का। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है आपको डाइस का, 6 फेसेस रहते हैं उसमें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपको अभी से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन से पहले अपन एक और काम भी कर सकते हैं, दैट इज और डेफिनेशन देख सकते हैं। और थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। दैट नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम को यूज करना है देखो। द इवेंट्स, द इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड independent 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 and then if probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. This is the definition of independent event. Events अगर independent है तो इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। So how to read this one, you can see probability of A given B. Don't read as A by B. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. This is your first condition, A given B के लिए। Keep it here, keep it here, paperweight। Probability of B given A, B given A can be written as probability of B intersection A by probability of A।
This is the definition of conditional probability. Next, multiplication theorem. ये पूरा एक पेपर में कहीं भी लिख लो आप आपके नोटबुक में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। हाँ, आपकी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। ये डेफिनेशन आपके साथ में रहना रोजाना, हर क्लास में आपको ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं यूज होते रहते। ठीक है ना? नोट डाउन दिस। क्लास के बाद में इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट देखिए इसका। स्टेटमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, if E1 comma E2 are are two events two events such that probability of E1 should not be zero, probability of E1 should not be zero, and probability of E2। ये कॉलेज में स्टार्ट करें आपके पास? यस सर। फर्स्ट यूनिट कुछ दिख रहा, कुछ रिलेटेड? सर मैं पूरे क्लासेस अटेंड नहीं करी। अच्छा, अभी आपके पास के फ्रेंड्स के पास किसी का से नोट्स लेके देखिए, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या है। प्रोबेबिलिटी ओके। ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, ये सब चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, राइट। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, E2 इंटरसेक्शन E1, और E1 E2 की प्लेस पे आप ए और बी को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन कैसा बन जाता है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ए कामा बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A is not zero, probability of B is not zero, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A into, और दूसरा डेफिनेशन अगर इसके दूसरे फॉर्म में लिखे, दिस इज E2 मीन्स probability of B into probability of A given B। बट अपन तो E1 और E2 में लिख रहे हैं, आप चाहे तो A और B में भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो बता दिया मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बता दिया मैं आपको। नाउ विल गो फॉर एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम का डेफिनेशन बताएंगे आपको। हाँ, ये और एक रह गया, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट से कोई डेफिनेशन तो नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूले के जैसा इसको याद रखना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - probability of A। Probability of B complement means 1 - probability of B, like that।
Addition theorem on probability. Addition theorem on probability. Statement. मैं इसको ए और बी में लिख रहा हूँ. इन ए random experiment, in a random experiment, if A comma B are any two events such that probability of A intersection B is not equal to empty set, then probability of A union B can be written as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ओके, और यही उसी को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं. If I want to write this is in terms of like that, probability of A union B union C, तीन सेट्स अगर है वो, तो दैट कैन बी रिटन एज probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. ये अगर तीन इवेंट्स है तो फिर फार्मूला ऐसा बड़ा हो जाए. ठीक है ना. तो एक और एक लिखेंगे अपन. डेफिनेशन ऑफ बेस थ्योरम का स्टेटमेंट. चलो एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा आपको बेसिक देने के लिए. खाली डेफिनेशन से थोड़ा बोर हो गए होंगे आप. एक क्वेश्चन है, देखिए. ए कार्ड इज ड्रॉन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक फ्रॉम ए वेल वेल shuffled from a well shuffled pack of cards. मतलब 52 कार्ड्स में से
एक कार्ड को ड्रॉ करें, कामा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that it is it is either it is either spade, it is either spade, स्पेड बोलते वो कार्ड्स का एक नाम है, और एन एस, क्वेश्चन है। ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्पेड आना या फिर एस आना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो अपन ए में जो है ना, कैपिटल ए में दो सेट्स बनाएंगे इसके। ए में स्पेड ले लेंगे, स्पेड में टोटल 32 कार्ड्स आते, तो 13 कार्ड्स होते स्पेड्स, इसमें कितने रहते? ये 13 कार्ड्स रहते, पूरा 13 कार्ड्स, ये हो गए। ये बी में, यानी कि ये पूरा स्पेड्स 13 कार्ड्स बोलते, क्या क्या आ सकते हैं आप बोलिए? एस आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, कॉमा, किंग, कॉमा, क्वीन। ये पूरे 13 पॉसिबिलिटीज है ए के लिए, इस सेट ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब सेट बी में क्या करेंगे? सेट बी में ए से एस, मतलब वो चारों देखिए, यहाँ पे बताया था, देखिए मैं इधर बताया, एस इसमें भी रहता, एस यहाँ पर भी रहता, एस यहाँ पर भी रहता, एस यहाँ पर भी रहता, मतलब टोटल एस कितने हुए? 4 हुए ना। एस, कॉमा, एस, कॉमा, एस, कॉमा, एस। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल कितने कार्ड्स है इसमें? बोलिए, आंसर कुछ भी नहीं बोले आप। 13 है आउट ऑफ 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता? कितने हैं टोटल? 4 आउट ऑफ 52। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज दैट इंटरसेक्शन पार्ट? दोनों में कॉमन कौन सा है? यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, कॉमन आउट ऑफ 52। तो नाउ बाय एडिशन थ्योरम, बाय एडिशन थ्योरम, क्या है एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके, यहाँ पर लिखा ना, इधर स्पेड और एस, स्पेड को ए से डिनोट कर रहे हैं और एस को बी से डिनोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एडिशन थ्योरम, दैट इज probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, which is equals to probability of A का वैल्यू है 13 आउट ऑफ 52 प्लस probability of B का वैल्यू है 4 आउट ऑफ 52 माइनस A intersection B का वैल्यू है 1 आउट ऑफ 52। Now if you simplify that, 52 will be taken as LCM, 14, 17 plus 16, 16 आउट ऑफ 52, ये कैंसिल भी हो जाता इससे 4 के टेबल पे, 4 4 जा, 4 1 जा, 2 left, 4 3 जा, so the answer is 4 by 13। तो probability of
स्पेड और एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/13। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने को करना है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे करेंगे अपन। और हर क्वेश्चन जो है ना, या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा, या इंडिपेंडेंट इवेंट्स के डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे डिपेंड करेगा, या एडिशन थ्योरम पे डिपेंड करेगा, या बेस थ्योरम पे डिपेंड करेगा। तो ये पूरी चीज़ें एक बार आप आज की क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप। तो फिर मैं आपको और सारे क्वेश्चंस कराने का है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एक मतलब मैं आपके सिलेबस की भी एक बार देखता हूँ। यहाँ पर आप सिलेबस दिखाए थे ना मेरे को। हाँ, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी में प्रोबेबिलिटी स्पेसेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस थ्योरम, ये इसके ऊपर सबके ऊपर क्वेश्चंस करने के बाद ही अपन रैंडम वेरिएबल एक नया टॉपिक रहता, मतलब अलग डिस्कशन है। रैंडम वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल्स का डिस्कशन है, एक डिस्क्रिट है, एक कंटिन्यूस है। वो एक्सपेक्टेशन उसका वो पूरा करने का है। तो थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, एक दो तीन क्लासेस इसके ऊपर ही रखेंगे। एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस करके विल गो फॉर डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके। और उसके बाद के सेकंड और थर्ड यूनिट में क्या रहता बोलता हूँ, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल के ऊपर है ये बायनोमियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद का थर्ड वन जो है हाइपोथेसिस, ये दो सिग्निफिकेंस डिफरेंस का करना है। अपन देख के करेंगे, वो स्लोली जा सकते हैं, ऐसा कोई जल्दी जल्दी तो नहीं है। ये एक बार आज की क्लास आप अच्छे से देख लीजिए। मैं प्रॉब्लम थोड़े से सेलेक्ट करके रखता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन डायरेक्टली तो वह प्रॉब्लम ही कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर कुछ ज़्यादा रहते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़े सेलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है ना। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या भी नहीं रहता। तो ये दो तीन यूनिट आपको बहुत अच्छे से हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो देखेंगे अपन। हाँ, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट 6 मिनट है, दे सकते हैं क्या? नहीं तो कल ही देता हूँ। हम्म, कल ही देता हूँ मैं। यस। ठीक है, राइट। विल एंड ऑफ दिस सेक्शन एंड दिस पीडीएफ विल बी गिवन टू यू। एक बार आप वो कार्ड्स और वो ले लो, बोलते कार्ड्स ले लो, 52 कार्ड्स रहते ना, प्लेइंग कार्ड्स ले लो। आपको ना प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है। यस।